بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون۔ محترم حاضرین، یہ سورہ مومنون ہے۔ مومنون کا مطلب مومن بندے، ایمان رکھنے والے بندے، ان کے نام سے اللہ تعالیٰ ایک سورہ رکھا ہے۔ 20 پر 3واں سورہ ہے۔ اس کے آخری چند آیتیں میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ یہ بڑی رقت آمیز، یعنی دل کو نرم کرنے والی اور انسان کی زندگی کی حقیقت یاد دلانے والی آیتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتاتا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، سنیے۔ سننے کے بعد ایک دم ایسا لگے گا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے چلتا ہے۔ چند چیزیں اللہ تعالیٰ ایسے بتائے قرآن میں، ہمیں دل سے سنیں گے، خیال ہمارا ادھر ادھر دوسرے چیزوں میں کیا بھی گئے، اس کا پورا اسی بات میں اگر ہم سنیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں وہاں ہی ہمارے سامنے ایسا چلتا ہے، ہمارے سامنے ایسا چلتا ہے، ہمیں خود وہاں حاضر ہی ہمارے اوپر ایسا گزرتا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ کیا کرنا، کیسا کرنا، اللہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ایسا وہ ساری حالت ہمارے اوپر آ جاتی ہے، حالت طاری ہو جاتی ہے ہمارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ربی، اے نبی آپ دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بولتا ہے اے نبی آپ ایسا دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھا جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے، یعنی ایمان والوں کو بھی اچھے وعدے ہیں اور جو بے ایمان والے ہیں ان کے لیے اس کے الگ وعدے ہیں، تو وہ ذرا دکھا اللہ کر کو تمہیں دعا کرو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ خود بولتا ہے تمہیں ایسا مجھ سے دعا کرو۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اور ساتھ میں ساتھ یہ بھی پوچھو اے اللہ مجھے ظالمہ میں سے مت بنا، اس میں وہ گروپ میں ڈالنا کو اللہ مجھے نیک انسانہ میں بنا، نیک انسانہ میں شمار کر تو شامل کر، اس میں نکو اللہ مجھے تمہیں دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے تمہیں ایسی دعا کرو۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سارے نبیوں کے سردار ہیں اور جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں۔ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی کھولیں گے اور سب سے پہلے قدم رکھنے والے پورے پیغمبران کھڑے کر رہیں گے جنت کے سامنے، دروازے کے سامنے۔ نوح علیہ السلام رہیں گے، ابراہیم علیہ السلام رہیں گے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، سب باہر رہیں گے۔ تو سب سے پہلے جنت میں کیلی کھول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر جنت کے اندر سب سے پہلے قدم رکھنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ ایسا سکھاتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ اے نبی تمہیں پوچھو مجھ سے دعا کرو، اللہ مجھے ذرا چیزاں بتاؤ ان کے، اور مجھے ظالمہ میں رکھنا کو اللہ مجھے ایمان والا میں اچھے آدمی میں رکھ کر کو دعا کرو تمہیں مجھ سے۔ حالانکہ وہ لوگ اچھے ہی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ سکھاتا ہے۔ پھر کیا فرماتا ہے؟ اب آنے والے آیت دیکھو، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اے نبی جو کچھ ہم وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھانے پر یقیناً قدرت رکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا تو دنیا میں تم کو دکھا سکتا ہوں، میں چاہوں تو دنیا میں تم کو کیا کیا ان کو ملنے والا ہے، جنت والوں کو کیا ملتا ہے، دوزخ والوں کو کیا ملتا ہے، میں دکھانا ہو تو دنیا میں دکھا سکتا ہوں، اتنی قدرت ہے۔ اب اللہ کو تو قدرت ہے، اللہ کو تو قدرت ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سراسر بھلائی والا ہے۔ تمہارے سامنے تم نہ کون تو برا کرتا ہے یا برائی تمہارے سامنے ہے تو اسے دور کرو، کس طریقے سے؟ اچھے انداز سے۔ تمہیں برائی کو برائی سے بدلا دو نہ کو، ایک آدمی تمہارے ساتھ برائی بھی کرتا ہے تو تمہیں کیا کرو؟ اچھائی کے ساتھ اس کا سلوک کرو، اچھائی کے ساتھ اس کا بدلا دو اسے۔ اچھا، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے والے جو کچھ بولتے ہیں یہ سب میں جانتا ہوں،
इन्होंने क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, सब मैं देखता हूँ, सब मुझे मालूम है सब भी, फिर भी तुम्हें क्या करो, इन्होंने तुम्हारे साथ बुराई का सलूक करते हैं तो तुम्हें अच्छा सलूक करो, तुम्हें इनके साथ बुरा सलूक करो नको। उसके बाद फरमाया वक़ुल रब्बी आऊज़ बिका मिन हमज़ाति शयातीन। तो इसके लिए शैतान हमेशा क्या करता है, भाई उन्हें तेरे साथ अच्छा करे नहीं, तू कहीं को अच्छा करना, उन्हें तू बुरा इतना करे नहीं क्या, तू अच्छा कर को भी तीगा तो नाम आता है क्या, तीगा तो अच्छा समझते है क्या, नको। तो उसे वैसा कर कर को शैतान बार बार हमारे दिल में डालता है। तो उसके बाद से अल्लाह ताला क्या फरमाता है, और दुआ करें क्या मेरे परवरदिगार मैं शैतानों के वसवसे से तेरी पनाह चाहता हूँ, और ये भी दुआ करो अल्लाह मुझे शैतान के वसवसे से बचा, अल्लाह तेरी हिफाजत में ले, अल्लाह शैतान मुझे रकम रकम के वसवसे डालता है, लेकिन इससे बचा कर तुम्हें दुआ करो। उसके बाद वह अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, और आए रब, आए मेरे रब मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाएं। शैतान मेरे पास आकर मेरे दिल को, मेरे दिमाग को किरले नहीं सरका, मेरे दिल और दिमाग को ख़राब करे नहीं सरका, अच्छा रखने के लिए अल्लाह से मांगो, तुम्हें मेरे से दुआ मांगो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाता है शैतान नजी का ऐनी सरका, इनको दूर कर, इनको दूर कर कर दुआ करो, तुम्हें मेरे से क्या क्या चीज़ें अल्लाह सिखाता है। हालांकि ये सारी चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मालूम कराया है और हमना को मालूम कराता है क्या कि तो देखो इतने बड़े नबी को मैं ये सारी बातें सिखाया हूँ, हालांकि उन्हें क्या है सारे नबियों के सरदार, जन्नत में पहले जाने वाले, लेकिन इनको भी जिंदगी पूरी भी इंसान क्या होना, शैतान के वसवसे से बचना, शैतान के करीब आने से बचना, उसकी हिफाजत के वास्ते अल्लाह से दुआ करते रहना उससे बचने के लिए। अब उसके बाद देखो अब जो आयतें आते हैं, मैं आपको बताया ना कि दिल को, इंसान के दिल को नरम कर देने वाली, मोम कर देने वाली। हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है ऐ मेरे परवरदिगार मुझे वापस लौटा दे। जब मौत का फरिश्ता आता है, आदमी को सुला दे हैं बिछाने को, दम खरखरा करता है, मौत का फरिश्ता सामने आ गया है, अब रूह निकालने वाला है, तो ऐसे टाइम में उसे यकीन हो गया, किसे जो आदमी बिस्तर पर है उसे यकीन हो गया अब मैं मर जाता हूँ। अब उन्हें क्या क्या कर रखा है दुनिया में, बल्ला के पैसे कमा कर रखा है, घर में पैसा है या बैंक में भी समझो पैसा है, सुनना है, आस्ती पास्ती है, बल्ला की जायदाद है, आम के बाग हैं, बिल्डिंग हैं, प्लाट हैं, घर हैं, सब कुछ है। लेकिन ये आदमी क्या कर लिया, दुनिया कमाने जमाने में टाइम लगा डाला, अपनी आखिरत के वास्ते क्या भी ज़्यादा खर्चा कर लेने, तो वो टाइम को से याद आता है अब मुझे मौत आ गई है, अभी आखिरी वक्त है मेरा, अब मेरी जान निकाल आता है फरिश्ता, तो तड़प जाता है और तड़प कर बोलता है अल्लाह मुझे रहम कर, अल्लाह क्या रहम करना, मुझे दोबारा ज़िंदगी दे अल्लाह, चंद दिन मुझे अभी मौत न खो अल्लाह, मैं और ज़िंदा रहना चाहता हूँ अल्लाह, मुझे वापस कर दुनिया में, फिर मुझे अच्छी हालत में दे, मैं मेरा कमाया से पैसे में दिल खोल कर तेरे रास्ते में खर्चा करना, मस्जिदों को, मदरसों को, बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को, बीमारों को, मिस्किनों को, मुसाफिरों को, गरीबों को मैं दिल खोल कर मेरी कमाई, मैं मेहनत करके कमाया हूँ, ये पैसा पूरा उनको खर्चा करना अल्लाह, मैं सवाब कमा लेना अल्लाह, अल्लाह अल्लाह मुझे भेज अल्लाह, मुझे भेज अल्लाह करको। वो बिस्तर पर जो इंसान पड़ा है उन्हें तड़प तड़प करके बोलता है। हाँ देखो क्या बताता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आने लगती है तो कहता है ऐ मेरे परवरदिगार मुझे वापस लौटा दे, मुझे ले जाना को मुझे वापस लौटा दे, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक अमाल करूं। अब ये दुनिया में छोड़कर आया हूँ, ये दुनिया में छोड़कर आया हूँ, मैं दोबारा जाकर नेक कामा कर लेता हूँ अल्लाह, नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह, रोज़ा रखता हूँ अल्लाह, सदका खैरात कर लेता हूँ अल्लाह, उम्रा करता हूँ अल्लाह, हज करता हूँ अल्लाह, मैं दुनिया में कहते गफलत में रहेगा अल्लाह, मैं अभी हाय ले, मैं अभी जीतूँ ले, अभी जीतूँ अभी जीतूँ करके बोल रहा है, एकाएक मौत का फरिश्ता गले पाक बैठेगा अल्लाह, मैं क्या भी कर ले सके ना, मुझे भेज अल्लाह दोबारा दुनिया में, मैं नेक कामा कर लेता हूँ अल्लाह करको इंसान तड़पता है। अल्लाह फरमाता है ये तड़पता है, लेकिन हरगिज़ कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, ये तो सिर्फ एक बात है जिसे इन्हें बोलता है। कौन सी बात है, मैं अभी मौत न को अल्लाह मुझे दुनिया में जिंदा रख के साथ वापस कर,
मैं ये दुनिया में मैं नेक अमल करता हूँ, नेक काम करता हूँ बोलता है, लेकिन इन ऐसा करने वाला नहीं है। लेकिन इन ऐसा अगर अल्लाह चाहा तो फिर उसे दोबारा जिंदगी देखो, फिर सेहत तंदुरुस्ती देखो, दुनिया में जा भाई करके भेजा तो फिर उन्हें उस काम में लग जाता है। रहने लो, मैं ये कमाना वो कमाना, मेरे बच्चा को रखना, मेरे पोतरियां को रखना, मेरे नवासियां को रखना, मेरे खानदान को 10 पीढ़ियां बैठ को खान दे, ऐसा इस काम में लग जाता है। लेकिन अपने लिए कुछ नेकी कमा लेता नहीं, सिर्फ मुंह से तो बोलता है एक बात, लेकिन ये काम करने वाला नहीं है। इन्हें देखो अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला जानता है, इन्हें सिर्फ मुंह से बोलता है, लेकिन ये काम इन्हें करने वाला नहीं है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, पस उनके पसे पुश्त तो एक हिजाब है जिसके दोबारा जी उठने तक। तो अल्लाह ताला फरमाता है जब इंसान की जान रूह निकाल ली जाती है तो अब तुझे वापस दुनिया में भेजा नहीं जाएगा। तुझे जो मौका दिया था, मैं तेरी 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की, 100 साल की जो जिंदगी तुझे दिया था, वो जिंदगी में तू करना था, लेकिन करे बगैर तू वक्त पैसा कमाने में जमाने में लगकर गफलत में गुजार कर आ गया। अब तुझे वापस मैं भेजने वाला नहीं हूँ। अब यहाँ से एक पर्दा है, एक पर्दा है, बरज़ख, बरज़ख कमाना एक पर्दा है। वो दुनिया को, ये दुनिया को तू पर्दे के अंदर आ गया है, अब पर्दे के बाहर फिर तू जा नहीं सकता, तेरे से हो सकता नहीं, तू जा सकता नहीं, और मैं तुझे भेजता भी नहीं, और मैं तुझे भेजता भी नहीं। फिर क्या बोलता है, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। कब तक रहना है? क़यामत के दिन तक, जब तक सारे मुर्दे अपने खबरों से उठने का दिन आने वाला है, उस वक्त तक दुनिया की जितने इंसान ये दुनिया में पैदा होने का है, वो सारे इंसान पैदा होना, उनका वक्त गुजरना, उनका ज़माना गुजरना। मेरे भाई खाली सोच कर देखेंगे, हमें यहाँ जितने भाइयाँ बैठे हैं, हमें सब भी हमारी बचपने का ज़माना गुजर गया, कितना ज़माना गुजर गया, खेलते कूदते हमारा 10-15 साल 20 साल की उम्र तक। उसके बाद शादी वगैरह का ज़माना हमारा गुजरा, घरा में शादियाँ होते थे, हमारी शादियाँ हुए, फिर बच्चे हुए, औलाद हुए, उन औलाद के साथ की कितना खुशी का ज़माना हमारा गुजरा। ज़माना गुजरते गुजरते फिर उनको पढ़ाना, स्कूलों को भेजना, फिर उन्हों कमाना, नौकरियाँ वाले होना, फिर उनके शादियाँ में ज्वाइनिंग करना, फिर उनकी औलाद होना, ये ज़माना कितना गुजर गया हमारे हाथान से। हमारे देखते देखते हमें जो बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल, हमारे अल्लाह का कितना की शुक्रिया हमें अदा करना। कभी को तो हमारे साथियाँ या हमारे से छोटे कितने के लोग हमारे हंक्या के सामने चले गए, जरेद में दुनिया देखिए इसका चले गए, शादी में जो है इसका चले गए, जरेद में शादी कर लिए, बच्चे 1-2 पैदा हुए, बच्चों का सुख दुख देखे बगैर चले गए दुनिया से। कितने के लोग अरमाना लेकर चले गए, आस लेकर चले गए, ख्वाहिशां लेकर चले गए, क्या भी करना करो, तड़प को करे बगैर चले गए। कितनी ज़िंदगी हमारी गुजरी है, 50 साल 60 साल हमारी ज़िंदगी यहाँ तक गुजरती हुई आई है। ऐसे ज़िंदगियाँ कितने गुजरना कि अभी, ऐसे ज़िंदगियाँ कितने इंसानों के गुजरना, अभी कितने इंसान दुनिया में आना, अल्लाह ताला ही जानता है, अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं है। अभी कितने इंसान दुनिया में आना है, उन्हें पूरी ज़िंदगियाँ गुजारना। आज पैदा हुआ सो बच्चा, उन्हें अगर 100 साल को 80 साल को मरने का है तो उसकी पूरी ज़िंदगी गुजरना, फिर उसके बाद पैदा होने वाला, उसके ऐसा कितने पीढ़ियाँ नस्लां गुजरना की मालूम। ये क़यामत आने के लिए आजकल 100 बरस की, 8 बरस की, 50 बरस 100 बरस के बाद आने वाली चीज़ नहीं है। ये मालूम नहीं है किसी को कब आने वाली है, कब आने वाली है किसी को मालूम नहीं। एक ज़माना गुजरना है, लंबा ज़माना। तो अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, इन्हें जो ख्वाहिश करता है अगर इस दुनिया में वापस भैया तो इन्हें कामा करने वाला नहीं, अच्छे कामा सिर्फ मुंह से बोलता है, कामा करने वाला नहीं है। अब पर्दे के अंदर आ गया है और क़यामत तक इन्हें रहना है। ये पर्दे की दुनिया के अंदर इन्हें आखिरत तक रहना है। और कब तक रहना है तो वो फरमाता है, बस जबकि सूर फूंक दिया जाएगा उस दिन न तो आपस के रिश्ते ही रहेंगे, ना आपस की पूछ गछ रहेगी। वो दिन ऐसा है जिस दिन इसराफिल अलैहिस्सलाम फरिश्ता सूर फूकेंगे, सूर फूकने के बाद लोग अपने अपने खबरों से फट करके खबरें फटेंगी और खबरों में से निकलेंगे। एक इंसान जो मट्टी में दफन कर दिया गया, सारे इंसान मट्टी में हो गए, बालू बालू मट्टी मिट्टी हो गए, उनके हड्डा बुकनियाँ बुकनी हो गए, कुछ बाकी नहीं है। लेकिन
वो दिन ऐसा होगा कि पूरा जिस्म जैसा हमारा था दफन करते वक्त में वैसा पूरा जिस्म बन जाएगा और हमारे अंदर रूह आ जाएगी और हमारे अंदर वही होश व हवास, मतलब ये दुनिया में कैसी होश थी, अकल थी, समझ थी, हमें क्या क्या करे थे, किसे किसके साथ कौन कौन क्या, ये सब पूरा हम लोग रिकॉर्ड पूरा याद आया था पूरा भी। ऐसा मालूम होता है कि हमें अब भी दुनिया में एक 5 लाख 10 लाख के लिए जा करके आए हैं, पूरा याद। अब सुबह से शाम तक हमें क्या करें, आज का किस्सा हम ना मालूम, हमारी ज़िंदगी में हमें क्या करें हम ना मालूम है, ये सारा किस्सा याद आ जाता है। सारा किस्सा उस दिन में हर इंसान को होश हवास बेहतरीन तरीके से रहती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो ऐसा दिन है जब सूर फूंका जाएगा तो सब लोग आएंगे। उस दिन कोई रिश्ता किसी का काम आने वाला नहीं, पूछता भी नहीं भाई तू कौन, भाई तू मेरा मामू क्या, तू चिच्चा क्या, मेरा भांजा क्या, भाई क्या, बेटा क्या, कौन भी पूछने वाला नहीं। फला अंसाब बैनहुम, उनके दरमियान कोई नसब वाली चीज़ नहीं रहेगी, दादा पोतरा बाप चिच्चा कौन बात करने वाले, सब अलग अलग खड़े रहेंगे और पूछ गछ भी बात भी कर लेते नहीं। वला यतसाअलून, क्या भाई तेरा किस्सा कैसा क्या नहीं। ये दिन आने तक इंसानों को अपने बरज़ख के दुनिया में रहना है, वो हालत में अपनी अकेली हालत में वो दिन आने तक हर इंसान को रहना है। उसके बाद फरमाता है फमन सखुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उस दिन तराजू में जिसके आमाल भारी होंगे वो तो नजात वाले होंगे, नजात पाएंगे। जिनके नेक आमाल भारी होंगे उसके लिए मेरे भाइयों हमेशा दुआ करो, अल्लाह मुझे नेक कामा करने की तौफीक दे और वो नेक कामा को तो कबूल कर। हमेशा दुआ करो, क्या पता हमें नेक कामा करते हैं अल्लाह कबूल करता है कि नहीं। मिसाल करो हमें अब बैठ को कुरान पढ़ते हैं सुनते हैं, अल्लाह से दुआ करना अल्लाह ये पढ़ना सुनना सुनाने का सवाब हमारा हमला को दे, हमारा अमल कबूल कर। कबूल करे नहीं तो उसकी मर्जी, कबूल करा तो भी कर सकता है, नहीं करा तो भी नहीं कर सकता, देता नहीं साहब को तो हमें क्या भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा हमें जो पैसा भी खर्च करते हैं मस्जिदां के लिए, मदरसा के लिए, जो भी कामान के लिए, तो हमारे पैसे को भी अल्लाह हमना को सवाब देना करो। हमेशा हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। कई को तो नेक कामाल भी अगर सवाब मिला नहीं तो कर को भी फायदा नहीं इसका हो जाता है। तो हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहना चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है जिसके नेक अमाल भारी होंगे उन्होंने नजात पा जाएंगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, और जिनका तराजू का पल्ला हल्का हो गया ये हैं वो जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया। जिसके नेकियां कम हैं, जिसके नेकियां कम ही तराजू में रखो तोल तो स्टैम्प हो, तो ये इंसान अपना नुकसान खुद कर लिया है, दूसरा कौन भी इसका नुकसान करे नहीं। मामूल से दुनिया में हमें क्या बोलते हैं, बा मैं क्या कि व्यापार करता सही न्याय को खराब करा भाई, मुझे मेरा नुकसान कर डाला, मुझे कम मोल की चीज़ बड़को मोल को दिला डाला, या मट्टम चीज़ यानी रद्दी माल दिला डाला मुझे, या मुझे धोखा कर डाला। ऐसा करको इंसान दुनिया में क्या करता है, अपने नुकसान को दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करता है, बताता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है उस दिन क़यामत के दिन जिसके अमाल हल्के रहेंगे, नेकियां कम रहेंगे, तो उस वक्त उन्हें बोल लेता है अब्बा मेरा नुकसान मैं कर लिया, मुझे कौन भी नुकसान में डाला नहीं, आज मैं मेरे नुकसान में पड़ गया हूँ, कैसा मैं ये नुकसान से बाहर आना, मैं कैसा अल्लाह ताला के पास आज माफ़ी करा लेना मेरी ज़िंदगी के। करके इंसान क्या करता है, सोचता है। तो अल्लाह फरमाता है इनको कौन भी नुकसान पहुंचाए नहीं, इन्हें खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया दुनिया में। क्या नुकसान पहुंचा लिया, गफलत में था, धोखे में था, जोरू बच्चे कमाना धमाना, ये गफलत में पड़ गया। दुनिया कमाना नहीं, जोरू बच्चा पालना नहीं करो नहीं है, करो, लेकिन ज्यादा ख्याल पूरा हमारा किधर रहना, हमारे आखिरत के ऊपर रहना। मैं मर गया तो मेरी खबर में मेरी जो आती नहीं, मेरे बच्चे आते नहीं, मेरे नवासे, मेरे पोतरे, मेरे बेटियां कौन आने वाले नहीं, मेरी खबर में मैं अकेला जाना। तो मैं इनके साथ में दुनिया में हो तो इनको जो देना है वो करना है वो कर डालेंगे, जितना अदा करना है हक। उसके बाद मेरा वक्त पूरा भी मेरी आखिरत की फिक्र रहेंगे, मेरी खबर की फिक्र करेंगे। क़यामत में मैं अकेला खड़ा है तो मुझे कौन देखने वाले नहीं, मुझे कौन मदद करने वाले नहीं, सूरज देख को भाग जाएंगे। आज जिस औलाद के लिए हमें तड़पते हैं मेरे बच्चे बोलकर, कितना आदमी रात दिन खाना छोड़ देता है, पीना छोड़ देता है, कितनी मेहनत करते हैं बच्चे बोलकर, लेकिन क़यामत के दिन यही बच्चे देखेंगे सूरज फेर लेकर भाग जाएंगे, सूरज फेर लेकर भाग जाएंगे। खरीब भी आते नहीं, मदद भी करते नहीं, भाग जाते। तो
उस वक्त इंसान को ऐसी तकलीफ होती है, ऐसा दिल को दर्द होता है, अरे इनके लिए क्या मैं इतना वाक़ा पड़ा, इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए मेरे पूरी ज़िंदगी इनके लिए खपा डाला, खून पसीना पूरा एक कर डाला, रात दिन मेहनत कर को जाग जाग को कमा को दिया इनको, क्या आज मेरे लिए इतना पूछ सकते नहीं, क्या तुम्हें कैसे ही, क्या तो तुम्हें को जरूरत है कि आज तुम्हें हमने कितना खिलाई ही पिलाई जर्रे ने क्या हमारे तुम्हें लो और इतना बोल सकती क्या, इन्हों बोलने के लिए भी तैयार नहीं, खाली सूरज देख को भाग जाते हैं, सूरज देख को भाग जाते हैं। तो एक मिसाल से मैं समझ सकती हूँ, मिसाल के तौर पर समझो, एक आदमी सहरा में गुम हो गए, सहरा का तो एडारी डेजर्ट में रास्ता करने गए, चले गए, वहाँ धूप छाँव नहीं है, पानी नहीं है, खाना पानी हो गए, साथ में था सो खाना पानी हो गए। अब एक दिन पूरा गुजर गए धूप में भूखा प्यासा, 2 दिन भी गुजर गए, 3 दिन कलीजा मुंह में खा जाता है, प्यास तड़प जाता है, पड़ गया है। वैसे टाइम पर इन्हें किसी खिलाया कि पिलाया कि खूब ये कराया कि वैसा आदमी सामने का आगा, एक 4-5 जने आ गए, कौन जो रू बच्चे समझो, दूसरे दूर की बात क्या, भाना भाइयों को भी हमें करती खिलाती पिलाती, जरा बाप गुजर गया तो छोटे बच्चों को बड़े भाइयाँ पालती, शादी वगैरह सब करती। तो वैसे हमें किसी पैसा खर्चा करे थे कि फुल पैसा हमारी मेहनत पूरी भी, उन्होंने वैसे टाइम पर आए, कैसे टाइम पर हमें एडारी में ही, एडारी का तो डेजर्ट में, सहरा में ही, हाँ दूर दूर तक कौन भी दिखता न है, पानी न है, खाना नहीं है, पड़िया को ही, वैसे टाइम पर आए उन्होंने, आप उन्होंने हमला को खिलाना चाहे तो खिला सकती हैं, पिलाना उनके पास है, खाने पीने की चीज़ें, उनके पास सवारी है, हमला बुला जाए आपको इधर से उधर को पहुंचा सकती। लेकिन ऐसे टाइम में ऐसा देख को उन्होंने हमला बात भी करें सर का क्या भी दिए उसका चले गए, तो कितना जान तड़पता है इंसान का, क्या तरसता है जान, रे क्या रे चल जाते हैं, कम से कम बात करो रे, कितना खर्चा कराया मैं तुम लोग को, कितना खिलाया कितना पिलाया, आज मैं मौत के मुंह में हूँ, एक घुट पानी तो दो रे मुझे पीने, क्या रे चल जाते हैं, तुम्हारे पास पानी है, खाना है, सवारी है, तुम मुझे मुसीबत से बच को चल जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पड़ गया हूँ, मुझे 2 दिन हुआ रे खाना खाओ को, 3 दिन हुआ पानी पी 3 दिन, जरा घुट पानी तो दो रे मुझे करके तड़प के बोलता है। लेकिन उन्होंने बोलते नहीं, तेरी मौत तू मर, हमें आज तो क्या भी देने वाले नहीं कर को, हमारे हंक्या के सामने से अगर चले गए तो क्या कवाता है जान, क्या तड़पता है, इनके लिए क्या मैं इतना वाह बड़ा सो, और बदुआ भी निकल जाती है, तुम्हें मर जाओ, तुम्हारे मुर्दे निकल जाओ, मैं इतना वाह बड़ा, तुम्हें मैं इतनी छोटी मदद कर सकते नहीं, क्या रे तुम्हें रहे तो क्या, मर गए तो क्या रे, मेरे हंक्या से अल्लाह इनको बहुत जगह लाना, इनको गारत करा अल्लाह घर को भी जरा गुस्से वाला है तो बोल रहा है। तो ऐसी हालत वो टाइम में आने वाली है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है, फौलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून, और जिनके तराजू का पल्ला हल्का हो गया, ये हैं वो जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया, तेरा नुकसान तू कर लिया, नमाज को गया नहीं, अल्लाह को याद कराया नहीं, तस्बीह पढ़ा तो ये फायदा आता, कुरान पढ़ा रहा तो कम से कम बैठ जाए सुना रहा तो कितना के सवाब आता, खाली बैठ को सुना रहा तो 1/2 घंटा तो ये हजारों लाखों नहीं क्या तेरे हिस्से में आ जाते, वो था काम भी तू कर सका नहीं, वो था काम भी तू पैसे खर्चा करना, कमा को देना तो दूर की बात, खाली तो बैठ को सुने तो दिया जाता, सवाब मिल जाता ना। तो इंसान तरसता है क्या रे मैं कर लिया। एक सिनेमा देखने तो 3 घंटे टाइम लगता है, 2.5 घंटे 3 घंटे, खाली एक सीरियल देखने का टाइम ही, औरतें जो 1/2 घंटा एक सीरियल देखते हैं, 7 से 7:30, 7:30 से 8, 8 से 8:30 का टाइम, वो 1/2 घंटा तो मस्जिद में बैठा रहता 8:30 से 9 तक, तो आज तो ये कितना सवाब मिलता। तो इंसान सोचते आहा, उन्हें क्या कि बयान मैच का नहीं, हर जहाँ कहीं भी ऐसा काम होता है, उन्हें क्या कि बोलते थे भाई, बुलाते थे, मैं कितना धोखे में था, कितना गफलत में था, क्या जाने का लेकर केयरलेस कराया, ये बात कुछ नहीं, हर बात को भी, नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, खैर खैरात के बारे में, नेक काम करने के बारे में, मैं कम से कम चलता फिरता सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहा तो मुझे कितना सवाब आया था ना, मैं क्या भी करा नहीं ना, इंसान तड़प जाता है। और अल्लाह फरमाता है उन्होंने हमेशा जहन्नम में रहेंगे, हमेशा जहन्नम में रहेंगे। तलफहु उजूहहुमुन नार वहुम फीहा कालिहून, तो अल्लाह फरमाता है उनके चेहरों को आग झुलसती होगी, अंगार आग को चमड़ा खिंच जाती है, चमड़ा मुंह का चमड़ा से निकल जाता, मामूल से
हमें मुर्गी को जलाए या बकरे को जलाए तो भी जोर से ज़्यादा आंच हुई क्या होता है, चमड़ा जल कर निकल पा जाता है। आदमी को जो काम तो जल गए बामा पड़ को या अभी क्या तो अंगार में पड़ को जल क्या होता है, चमड़ा ऐसा निकल आता है। तो अल्लाह फरमाता है तल्फहु उजूहहुमुन्नार, आग उनके चेहरों को चमड़ा झुलसा देगी, खींच देगी। वहुम फीहा कालिहून, और वो वहाँ बद शक्ल बने हुए होंगे। ऐसी सूरत शक्ल नहीं, दोज़ख वाले की सूरत शक्ल बिगड़ जाती है, देखे तो भी मालूम हो कर ले सकते नहीं न कौन क्या, कहाँ वाला, क्या काम करने वाला, क्या नाम वाला, कौन इन्हें मेरा दोस्त क्या मेरा रिश्तेदार कर मालूम भी कर ले सकते नहीं। तो वो हालत हो जाती है, आग उनके चेहरों को झुलसा देगी और उनके चेहरे बदसूरत हो जाएंगे। उसके बाद फरमाया अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। तो उस वक्त अल्लाह पूछता है आए दोज़ख वालों सुनो, दोज़ख वाले के बारे में अल्लाह पूछता है सुनो, इधर सुनो मेरी बात, क्या मेरी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत नहीं की जाती थी? कुरान के बातें सुनाई नहीं क्या तुम ना को? हजरत सुनाई नहीं, माना मतलब बोले नहीं, समझे नहीं तुम ना को? फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, फिर भी तुम उन्हें झुटलाते थे। अरे ऐसा दोज़ख है, ऐसा सवाल जवाब होता है खबर में, क़यामत में सवाल जवाब होता है, ये सब तुम ना को पढ़ को सुने तो तुम्हें क्या बोलते थे? देख लेंगे जा, वॉइस टाइम को होने लेगा, कौन तू जाकर देख लेगा है क्या? तो ऐसा झुटलाते थे तुम्हें, उस बात को इनकार कर देते थे, सही समझते नहीं थे तुम्हें। क्या पढ़ को सुने नहीं मेरे आयता? अच्छा मेरी आयता करने की बात है, फिर इसे तो बोल सकते नहीं क्या मेरे आयता तुम्हें सुने नहीं क्या? कर को कौन बोल रहा है? बात है अल्लाह को बोलना, मेरी आयत नहीं, किसकी आयता? वो अल्लाह की आयता। तो अल्लाह ताला पूछता है क्या सुने नहीं क्या तुम्हें मेरा आयता? सुन तो क्या करे तुम्हें? केयरलेस कर डाले, इनकार कर डाले, हर अंधेले देखेंगे क्या है कि मैं सोलो स्टेशन जाता हूँ नमाज को, नहीं तो जाता नहीं, क्या होगा, क्या हो जाता है, क्या डूब जाता है अब करके तुम्हें क्या करते थे? इनकार करते थे। तो उस वक्त लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिन। तो उस वक्त कहेंगे कि ऐ परवरदिगार हमारी बदबख्ती हमारे पर गालिब आ गई। क्या बोलती? क्या कर को मरना भाई, मेरी दलिंदरागी मुझे पकड़ डाली थी, मुझे समझ में आया नहीं, मैं समझ सका नहीं, मैं मेरी गिरफ्तारी क्या कर को बोलना भाई। लोग बोलते क्या जी तुम्हें मालूम नहीं क्या, जाना नहीं उधर कहीं को गई, करंट है ना वहाँ तल्ले वैरा पड़े थे, कहीं को जा खुल ले जी, क्या कर को मालूम भाई, मेरी गिरफ्तारी थी, देखना नहीं क्या जी हंकाम खोल को। तो इंसान का जब नुकसान होता है तो इंसान क्या बोलता है? मेरी दलिंदरागी मेरे ऊपर बैठ गई थी भाई, मेरे सिर को मुझे समझ में आया नहीं। तो उन्होंने बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कहेंगे परवरदिगार हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई, वाकई हम थे ही गुमराह, हमें गलत रास्ते में थे अल्लाह, हमें दुनिया के अंदर पड़ गए थे, गलत रास्ते में पड़ गए थे, तेरी बातें सुनने, तेरे आयतां सुनने, तेरे कुरान की बातें सुनने हमारे से हो सके नहीं। हमारी बदबख्ती को तो हमारी बुरी तकदीर हमारे आँख पड़ गई थी अल्लाह, हमना को लपट ली वो कामा में, वो बातें में लपटे जा को मर गए अल्लाह, हमें क्या करना अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाता है, उसके बाद बोलती हूँ रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इनुजना फ़इन्ना ज़ालिमून। तो फिर बोलते हैं आए हमारे परवरदिगार हमें यहाँ से नजात दे, हमने बचा अल्लाह, ये दोज़ख से बचा, ये दोज़ख के अज़ाब से बचा। अगर अब भी हम ऐसा करें तो बेशक हम जालिम हैं, अब बचा को दोज़ख से बाहर भेज अल्लाह, हमें अब ऐसे कामा करने वाले नहीं हैं। मौका दे अल्लाह हमना को करके पूछेंगे, हम जुल्म करते नहीं तो क्या करना नहीं, सो कामा करते नहीं, करना से कामा कर को आती अल्लाह, हमना दे अल्लाह मौका। तो अल्लाह ताला फरमाता है खालक़्सू फ़ीहा वला तुकल्लिमून। तो अल्लाह ताला फरमाएगा फिटकार हो, यहीं पड़े रहो। एक सौ को तो खामोश मरे हाथ, तू कुत्ते को बोल दे देखो थो दलिंदर चल यहाँ से निकल, हाथ मर तू। तो अल्लाह ताला ऐसा बोलता है दोज़ख वाले को, क्या बोलता है? खालक़्सू फ़ीहा, मुंह मूछले को पढ़ को रहे यहाँ, क्या मुंह खोलना को तू, अब क्या अभी बात करना नहीं तू, ये उसका असली माना करना। कैसा? जबान बंद कर, मुंह मूछ को पढ़ को रहे हाथ, तू सजा पूरी पाना सो झांच। तो अल्लाह क्या फरमाता है?
अल्लाह ताला खालक सऊफिया वला तुकल्लिमून, बात करना नहीं तुम्हें, अब मेरे से पूछना नहीं, रहम कर अल्लाह, हमक माफ कर अल्लाह, हमने घर को चांस दे अल्लाह, क्या मुंह खोला, मुंह बंद कर, पढ़ कर यहाँ खामोश साइलेंट, बात करना नहीं, मुंह खोलना नहीं तुम मेरे सामने। कितना मौका दिया, कितनी ज़िंदगी दिया तुझे, कितना खिलाया, कितना पिलाया, 2 हाथां दिया काम करने के लिए, 2 पाँव चलने के लिए दिया, देखने के लिए 2 अंजान दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया, बात करने के लिए ज़बान दिया, कितने नेमतां खिलाया थी, कितने नेमतां। अल्लाह खाली एक ही फल रखा रहता तो भी क्या कर सकते थे, हमें क्या भी नहीं कर सकते। हर सीज़न के लायक से फलान दिया है, खाने के मज़े की चीज़ें दिया है, और ज़िंदगी गुजारने की मज़ा बीवी को दिया है, क्या क्या खुशियाँ दिया है अल्लाह ताला दुनिया में, इतने सारे चीज़ों में तुझे दिया तो तू गफलत में गुजार को, यहाँ का अब फिर को रोता है मेरे सामने, मुँह बंद कर, पढ़ो हाथ में, बात ही करना नहीं, मुँह खोलना नहीं तो कल को अल्लाह ताला दोज़ख वालों से कहता है। और फिर क्या बोलता है, इन्नहु कान फरीक़ुम मिन इबादी, मेरे बंदों की एक जमात थी जो बराबर ये कहती थी, क्या बोलते थे उन्होंने, यक़ूलून रब्बना आमन्ना, अल्लाह हम ईमान लाए हैं, उन्होंने बोलते थे, फ़ग़फ़िर लना, अल्लाह हमको माफ़ कर अल्लाह को। एक ग्रुप था, एक ग्रुप तो जरेदना बोलते थे, जरेदना ऐसे बल्ला के अदना थी, वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन, और उन्हें क्या बोलते थे, अल्लाह हमको माफ़ कर, अल्लाह हम पर रहम फरमा, तू बेहतरीन रहम करने वाला है, तेरे से बड़ा कौन रहम करने वाला नहीं है। करो तुम्हारे साथ में चलते फिरते सदम्यान की एक जमात थी, तो कुरान सुनने वाले, जाकर बैठने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रोजे रहने वाले, अच्छे काम करने वाले तुम्हारे साथ में थे, उन्हें दुआ भी करते थे, तो तुम्हें क्या करे उनके साथ, क्या करे तुम्हें, फत्तखज़्तुमूहुम सिखरिया, दोज़ख वालों को अल्लाह बोलता है, ऐसे आदमियों को देख को तुम्हें मजाक उड़ाते थे, वाह क्या टिक सकते नहीं, देख सकते नहीं, नमाज करते, रोजे करते, बयाना बैठना करते, सुनना करते, मस्जिद में जाको हा देख सकते नहीं, अब चले जाते हैं, अब भी जन्नत पे चले जाते हैं, सवाब पूरा मोटे मोटे पड़ जाता है आसमान से, तो ऐसे मजाक के बातें करते थे तुम्हें। अल्लाह ताला उनको बोलता है, वो जो दोज़ख वालों को बोलता है, क्या बोलता है, फत्तखज़्तुमूहुम सिखरिया, लेकिन तुम उन्हें मजाक में उड़ाते थे, वो बातें सभी तुम्हें मजाक में उड़ाते थे। हत्ता अंसौकुम ज़िक्री, यहाँ तक के उस मशगले ने तुमको मेरी याद भी भुला दी, तुम्हें वो बातें में, वो कामा में, पीने खेलने, राज रंग करने, बतड़ों को लाखों रुपए उड़ाने, गाना बजाने, शादियों को ये करने, टूरा फिरने, ये करने, उर्सा करने, मुहर्रमा करने, ऐसे तुम्हारे काम, तुम्हारे मजाक दीन के साथ तुम्हें जो करते थे, ये सब क्या हो गए तुमना को, मेरी याद भुला दी तुमना को, मेरी याद से भूल गए तुम्हें, मेरी याद कहते क्या, नमाज ही नहीं, तुम्हें छोड़ कहीं का नमाज बढ़ाए। मस्जिद के सामने से जाता था तो नमाज चलती थी, मस्जिद के सामने देख लेता चल जाता था, नमाज चलती थी, मस्जिद के बाजू में लग रूम में बैठा था, नमाज चलती थी, मस्जिद के अंदर भी आको जरदना चल जाते हैं, तुम्हें देखेंगे नहीं कि मैं देखा हूँ, नमाज चलती है तुम अंदर आको भी 1-2 गलत चल जाने वाले आदमी है, मस्जिद नमाज को जाते नहीं। तो अल्लाह ताला कहा, मेरी याद से तू भूल गया ना, मेरी याद को भुला दे, तू नमाज ही पढ़े नहीं तू। वो कुंतुम मिनहुम तज़हकून, और तुम्हें क्या करते थे, मेरी याद को भुलाए, नमाज पढ़े नहीं, ईमान लाए नहीं, और वैसे आदमियों को देखो हंसते थे तुम्हें। हाँ देखो, वो कुंतुम मिनहुम तज़हकून, और तुम उनसे मजाक ही किया करते थे, हंसते थे, ज़ही का ज़हक माने हंसते थे। इन्नी जज़यतुहुमुल यौम बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फाइज़ून, जिनको देख को तुम्हें केयरलेस करते थे, मजाक करते थे, उनकी वैल्यू नहीं थी तुम्हारे सामने, तुम्हारे दिला में, तुम्हें उनको क्या ही काम आती, बेकार बेटे रे पढ़ो, क्या ही काम आती है, वो क्या नमाज रोजा कर को पकड़ ले बैठे, क्या तो कमाएंगे, कारा लेंगे, घरा लेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, दुनिया के आम के बागा लेना, वो लेना, ये लेना, क्या भी नहीं, प्लाटा बनना, वो क्या भी नहीं सका, पाएंगे फकीर आंगे इसका, नमाज रोजा का भी देखेंगे वो बता, अब क्या भी नहीं करो। ऐसा तुम्हें क्या करते थे, उनको मजाक करते थे। लेकिन आज अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नी जज़यतुहुमुल यौम, आज मैं उनका बदला दिया हूँ पूरा, उनको क्या बदला दिया हूँ, उनको जन्नत दिया हूँ। उन्होंने दुनिया के चीज़ों के ऊपर सब्र करते थे, पैसे मिले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो जितना दिया बस है, बड़ी दौलत मिली नहीं, कार नहीं है, बंगला नहीं है, ये नहीं है, स्टेटस नहीं है,
लाखों करोड़ों के पैसे नहीं, सुनना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो जो दिया उसके ऊपर हमें राजी हैं अल्लाह कर को मेरे से राजी थे और मेरी इबादत छोड़ते नहीं थे, नमाज रोजे की पाबंदी करते थे, गरीबी हालत में तुम्हें ज़िंदगी गुजार के हैं, तो मैं आज उनको उनका बदला पूरा दिया हूँ जिसे तुम्हें मजाक करके दुनिया में छोड़ कर आए थे। क्या बदला पूरा दिया हूँ? इन्नी जज़यतुहुमुल यौम बिमा सबरू, जो उन्होंने दुनिया में सबर करे, तुम्हारे बातों को भी सबर करे और जो तकलीफ मुसीबत आए थे उसके पर भी उन्होंने सबर करे थे। अन्नहुम हुमुल फाइजून, कि वो ही लोग कामयाब हुए हैं। आज उन्होंने मेरे रहमो करम के हकदार हैं और मैं मेरे रहमो करम से उनके गुनाहों को माफ़ कराया हूँ, उनके छोटे गुनाहों को, उनके बड़े गुनाहों को, और मैं उनसे जो कुछ हो गया है वो सारी चीज़ों को माफ़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, आज जन्नत में भेजा हूँ। आज उन्होंने जन्नत में आराम से ही तुम्हारे सरकार तड़पते नहीं। खुल खालकम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन, फिर पूछता अल्लाह किसे, जगह वाला से, कितने दिन था तो जमीन में बोल, तुम्हें सज्जन ने भी कितने दिन जमीन में गुजार कर आए हैं, कितने बरस थे तुम्हें बोलो। तो लोग क्या बोलेंगे? क़ालू लबिस्ना यौमन औ बाज़ यौम फस्अलिल आदीन, वो कहेंगे एक दिन या एक दिन से कम भी वक्त दुनिया में होगा अल्लाह में, इन्हें 60-70 साल 80 साल 100 साल हो गया रहता है, लेकिन क्या बोलता है अल्लाह दुनिया पूरी एक दिन ही चल रहा, मैं था सो एक दिन की नहीं तो आधा दिन की होगा या अल्लाह, मैं क्या भी कर सके अल्लाह दुनिया में, और इन्हें तड़पता है। और फिर क्या बोलता है? कौन तो भी गिनने वाले हैं तो हिसाब डालने वाले, मैस करने वाले, वो कितने दिन कितने बरसा महीने, उनको पूछ ले अल्लाह, हमें मालूम नहीं अल्लाह कर को, बस अलिल आद दिन पूछो उनसे पूछ अल्लाह कर को बोलती। तो उस वक्त अल्लाह क्या बोलता है? क़ाल इन लबिस्तुम इल्ला ख़लीलन लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून, अल्लाह ताला फरमाएगा फिल वाक़े तुम वहाँ बहुत कम मुद्दत रहे हो। हाँ करेक्ट, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें हिसाब कर ले सकते नहीं, लेकिन तुमने को थोड़ी ज़िंदगी दिया था, 60 साल 50 साल 40 साल जो छोटी ज़िंदगी दिया था, ऐ काश तुम इसे पहले ही जान लेते। ये साथ जर्रा वक्त था हमें दुनिया में रहते सो, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली कर को दो देख में आने के बाद जो समझते हैं, ये समझना तुम्हें दुनिया में समझे रहे तो कितना अच्छा रहता था तुम्हारे लिए, कहीं को समझे नहीं तुम्हें दुनिया में कर को अल्लाह ताला पूछता है। उसके बाद 2-3 आयतें हैं, ख़त्म करेंगे। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसं व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, बड़ी प्यारी आयत, बड़ी प्यारी आयत। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसं व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये गुमान किए हुए हो कि तुम यूं ही बेकार पैदा करा हो तुमला को, चुपके दुनिया को खेल लेने का तमाशे के लिए पैदा करा बोल ले क्या तुम्हें? जैसा बच्चे मट्टी के घरोंदे बनाते, घरोंदे हो तो बारिश पड़ी तो मट्टी भीगी रहे तो पौनों को घर बनाती, फिर खेल जाते जाते चिल्लाड़ डाल को पूरा किरल डाल को चले जाती, वेस्ट चुपके जर्रे खुद के लिए। तो वैसा तुमना को मैं बेकार दुनिया में खेलने के लिए पैदा करा समझे थे क्या? अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन, तुमना को बेकार चुपके कई काम आते इस काम के लिए पैदा करा बोली तुम्हें। वन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, फिर को तुम्हें ये जिंदगी गुजार कर मेरी तरफ आना कर को बोल ले नहीं, तुमना को मालूम नहीं, तुम्हें पलट के जाते मिले हमें ये दुनिया सब भी क्या क्या करना कि हाथ कल रहेंगे कर बोल रहे थे, फिर पलट को आना नहीं मेरे ने, उसका जवाब देना नहीं तुम। आते मिले हमें जाते मिले होता मिले हमारे भाई बल्ला की समझ, हाँ इन्हें बड़ा देख का है कौन जा कहीं क्या होता है कि नहीं कि खाए लगा अच्छा खा लेना पी लेना कर लेना, वहाँ क्या होता है कि वहाँ जाते फिर देख लेंगे, ले क्या देखने का, क्या अभी देख सकता नहीं। उसके बाद अल्लाह फरमाता है फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़, अल्लाह ताला ही सच्चा बादशाह है और वो बड़ी बुलंदी वाला है, बड़े ऊंचे मर्तबे वाला है। ला इलाहा इल्लाहु, वो उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह कहलाने का लायक उन्हें अकेला है, उन्हें अल्लाह उन्हें से इबादत के लायक है, उसकी इबादत करना दुनिया के अंदर। रब्बुल अर्शिल करीम, बहुत बड़े अर्श का मालिक है, उस रब अर्श को भी अल्लाह ताला ही पैदा किया है। वमन यदउ हो गई 2 आयत हैं, वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिह,
जो शख्स अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारते हैं जिसकी कोई दलील उसके पास नहीं है, अल्लाह को छोड़कर ये दरगाह करने, वो दरगाह करने, वो खबर करने, ये इसके पास उसके पास, वो देवल करने, ये बुत करने, ये जो करने, वो चर्च में जा को फिर को मरता है, तेरा सिर झुकाता है, वहां जा को पूछता है, करता है। अल्लाह बोले कहती है, कहते तो प्रूफ है तेरे पास, ये काम मैं करता हूं, सो ये करना, ये सही है, ये अच्छा काम करता है तेरे पास प्रूफ, ला क्या है कि प्रूफ देखेंगे, कौन बोलती है? कहीं को जाको अल्लाह के सिवा दूसरा को पूछता है, तू अल्लाह के सिवा दूसरा के सामने इबादत करता है, झुकता है। अल्लाह फरमाता है वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह को भी बुलाता है, अल्लाह ये कर फिर इनको भी बोलता है, अल्लाह को भी पूछता है, इनको भी, अल्लाह के साथ इनको भी तो पूछता है, पूजा करता है, इबादत करता है, पूछता है, मांगता है। ला बुरहान लहू भी, इसकी कोई दलील उसके पास नहीं है, प्रूफ नहीं है ऐसा करने की। फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी, बस उसका हिसाब तो उसके रब के ऊपर है। कौन आज तेरा हिसाब लेना है? यहाँ तेरी पूरी जिंदगी के हिसाब लेने वाला मैं हूं, तो किनके किनके पास गया है उन्होंने कौन भी तेरा हिसाब लेने वाले नहीं है, मैं लेने वाला हूं। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, बेशक काफिर लोग नजात पाने वाले नहीं हैं, अल्लाह का इनकार करने वाले, अल्लाह के साथ दूसरे को पुकारने वाले आज उन्हें बचने वाले नहीं हैं। उसके बाद आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात बोलकर बात खत्म करे अल्लाह ये सूरा, वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन, और ऐ नबी आप कहो कि ऐ मेरे रब, अल्लाह से मांगो, पूछो, क्या पूछो? तू ही बख्श और रहम कर, और तू सब मेहरबानों से बेहतर मेहरबानी करने वाला है। अल्लाह तू मुझे माफ़ कर, अल्लाह अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम कर, तेरे सिवा कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला तू है। दुनिया में छोटे मोटे रहमो करम करने वाले रहेंगे इंसान, लेकिन तू सारे लोगों से ज़्यादा रहम करने वाला है, सारे रहम करने वालों से बड़ा है, मुझे माफ़ कर अल्लाह, रब्बी फिर मुझे माफ़ कर। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुनाह नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई छोटी भी गलती नहीं, छोटी बुराई नहीं, नौज़ुबिल्लाह, छोटा गुनाह भी नहीं आपका कोई नहीं, बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं। फिर भी अल्लाह ताला कहता है ऐ नबी मांगो मेरे से, तुम्हें क्या मांगो? रब्बी फिर, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर करके पूछो, तुम्हें मेरे से रोज़ भी मांगो। वरहम, अल्लाह तो रहम कर करके पूछो भाई, हमेशा तुम्हें इतने बड़े पैगम्बर है तो तुम्हें पूछना सुन। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके अंदर आता है फरमाते हैं मैं हर दिन, क्या बोलते हैं, हर दिन 70 बार से ज़्यादा अल्लाह से अपने लिए माफ़ी मांगता हूँ, 70 बार से ज़्यादा, 70 मरतन, अल्लाह मुझे माफ़ कर, अल्लाह गलती होती है माफ़ करना है, लेकिन फिर भी माफ़ी मांगते हैं। कितने बार? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 70 बार रोज़ाना अल्लाह से माफ़ी मांगते थे। तो उन्होंने इतने बड़े दर्जे में रहो को उन्होंने इतने बार अल्लाह से माफ़ी मांगी हैं, तो हमें कितने बार अल्लाह से माफ़ी मांगी? हमें कितने गुनहगार इंसान हैं, हमारे से कितने गलतियाँ हो जाती हैं, हम मालूम नहीं इसका अल्लाह के गलतियाँ हो जाती हैं, हम मालूम हो कभी मजाक में झूठ बोलाती हैं, वो झूठ भी बहुत बड़ा गुनाह, हंसने का झूठ बोल डालती हैं, छोटी बात बचने का लिए झूठ बोल डालती हैं, क्या क्या हमारे से होते नहीं, हमें सब भी गुनाह के पुतले ही, हमारे से कितने की गलतियां हो जाती रहती। तो इसलिए हमें कितने बार अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, डेली हर दिन कितने बार अल्लाह से माफ़ी मांगना। हमारे नमाज़ां छोड़ जाते हैं, हमारे रोज़े छोड़ जाते हैं, हमारे नेक अमाल छोड़ जाते हैं, हमारे से गफलत में ज़िंदगी गुजर जाती है, और बुरे काम कितने हमारे से हो जाते हैं मालूम। तो इसलिए हमेशा हमें भी ये दुआ हमेशा करते रहना, क्या, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर। हमारे लिए मांगना, हमारे माँ बाप के लिए भी, अल्लाह मेरे माँ बाप को माफ़ कर, उन्होंने कैसी कैसी तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार कर चले गए, अल्लाह उनको माफ़ कर, अल्लाह को, उनके लिए भी अल्लाह ताला से दुआ मांगना, हमारे लिए भी दुआ मांगना, और हमारे रिश्तेदारों के लिए भी, हमारे बीवी बच्चों के लिए, हमारे सारे हमारे उस्तादों के लिए जो हमने को कुछ भी सिखाए हैं, छोटा मोटा दीन की बात, दुनिया की बात, और सारे मुसलमानों के लिए मांगो, अल्लाह दुनिया में जितने मुसलमान हैं सारे मुसलमानों को माफ़ कर अल्लाह, उन्होंने जानबूझ को करे हैं या मजबूरी में करे हैं, जैसा भी करे, उनसे जो गुनाह हो गए हैं छोटे या बड़े गुनाह, उनको भी माफ़ कर, हम लोग को माफ़ कर, सबको माफ़ कर अल्लाह को। हमेशा हमें दुआ करते रहना चाहिए। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है
کہ اللہ اے پروردگار اے رب العالمین، جیسا ہمیں آج بیٹھے ہیں ایسا ساری زندگی ہم کو بیٹھنے، تیرے کلام کو، تیری کتاب کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، ان باتوں کو یاد رکھنے اور تیرا ڈر ہمارے دلوں میں لا کر ہمارے آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا اللہ ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم کو غفلت کی زندگی سے نکال کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیری عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ غلط کاموں سے، غلط برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم کو نیک کام کرنے اور تیری یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہم کو آخرت میں تیری خوشنودی حاصل کر کے تیرے رحم و کرم سے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین و آخر دعوانا۔